Hello friends, good morning. I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Virpur Morbi, and in this subject, business studies, we are discussing about chapter number 5, organizing. Till now, we have completed 5 topics and we are discussing delegation, and over where we have completed concept elements. In today's video lecture, we are going to discuss about importance of delegation. Basically, there are 6 importance of delegation given in our syllabus. Number 1, effective management. Number 2, employee development. Number 3, motivation of employee. Number 4, facilitation of growth. Number 5, basis of management hierarchy. And last one, number 6, is better coordination. Let me discuss these 6 importance of delegation in details. Importance of delegation. Number 1, effective management. Delegation of authority helps the managers to free themselves from the burden of routine tasks. Simply it means that अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कोई मैनेजर करते हैं तो वो उनको इस तरह से हेल्पफुल रहेगा कि वो अपने रूटीन टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, right, amongst their subordinates, and he can become free from their routine task. They can then focus better on such priority areas as needed to be pursued by them alone. देखो, अगर रूटीन टास्क को सबऑर्डिनेट में कोई मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अलोकेट कर देता है, राइट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है, तो इससे क्या होगा? इससे वो जो अपने प्रायोरिटी वाले एरियाज है वहां पर और ज्यादा फोकस कर पाएगा. Delegation enables them to concentrate more on diversification and expansion of business activities. They can concentrate on core area which results in developing opportunities to excel in their respective area. Delegation जो है वो managers को बिजनेस एक्सपांशन एक्टिविटीज के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए और ज्यादा इनेबल्स करते हैं, बिकॉज जो रूटीन टास्क है वो सबऑर्डिनेट में अलोकेट की जाएगी. इससे क्या होगा कि बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो एक्सपांशन की ओर बढ़ेंगे और अपॉर्चुनिटीज जो है वो डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो और ज्यादा इम्प्रूव होगी, राइट. मैनेजर्स जो है वो कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने कोर एरियाज पे. सो ओवर हियर, बिकॉज ऑफ द डेलीगेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट is possible, right? Importance number 2, employees development. Delegation develops an enthusiasm among the subordinates to deal effectively with great challenges. It motivates the employees to develop themselves for higher positions as they are given opportunities to use their skills and talents of gaining excellence in their jobs. देखो, डेलीगेशन अगर मैनेजर्स जो है वो सबऑर्डिनेट्स में करते हैं, एट दैट टाइम सबऑर्डिनेट्स will have the opportunities to sharpen their skills and talent. उस वक्त सबऑर्डिनेट्स के पास ये अपॉर्चुनिटीज रहेगी कि उनको जो ड्यूटीज असाइन की गई है वो और ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ परफॉर्म करे, वो जो चैलेंजेस उनके ऊपर अलॉट की गई है वो उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फुलफिल करे, उनकी जो स्किल्स है, उनके जो टैलेंट्स है, उनको वो एक्सीलेंसी की ओर ज्यादा ले जाए और प्रमोशनल हायरार्की की ओर, पोजीशंस की ओर वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करे, राइट. अगर मान लो कि छोटे लेवल पे सबऑर्डिनेट्स को कुछ टास्क अलॉट किया जाता है, एट दैट टाइम उनको ये अपॉर्चुनिटीज रहेगी कि अगर वो इस टास्क को एज अ चैलेंज ग्रेटली कंप्लीट कर सकते हैं, एट दैट टाइम they might be offered the next higher position in an organization, right? So employees development is possible due to the delegation.
Point number 3, motivation of employees. Delegation involves faith in the part of superiors and commitment on the part of subordinate. जब delegation organization में होता है तब सुपीरियर जो है वो सबॉर्डिनेट पे भरोसा करते हैं और सबॉर्डिनेट जो है वो सुपीरियर को एक कमिटमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट, कि उनको जो टास्क अलॉट किया है वो उस टास्क को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे. This helps in enhancing self-esteem and confidence of all employees at large. देखो all employees at large की बात है यहाँ पर. So superior को भी वो भरोसा मिलेगा, subordination की ओर से उनको कमिटमेंट मिलेगा और ये जो चीज है वो सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करता है. Thus it motivates all of them, which is essential for smooth achievement of organizational goals. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के स्मूथ अचीवमेंट के लिए जो जरूरी है वो मोटिवेशन इस तरह से डेलीगेशन जो है वो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करता है. पॉइंट नंबर 4, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. डेलीगेशन facilitates growth and expansion of an organization by providing trial and experienced personnel for taking up leading position in some new projects. देखो अगर डेलीगेशन सुपीरियर अथॉरिटी से सबऑर्डिनेशन की ओर होता है तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए जो एक्सपीरियंस पर्सनल की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल की जा सकती है, राइट. एक्सपीरियंस और ट्रेल पर्सनल्स जो है वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए लीड कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती है, उनके ग्रोथ के लिए सोचा जा सकता है, राइट. अगर आप सबऑर्डिनेट पे भरोसा करते हैं, लाइक कम एंड डू दिस जॉब, राइट, यू कैन डू इट, राइट, आई एम अलोकेटिंग दिस टास्क टू यू, प्लीज कंप्लीट, कम फॉरवर्ड, डू लीड, एक्सेट्रा. तो इस तरह से उनको ग्रोथ की फैसिलिटीज, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है. दिस वे डेलीगेशन फैसिलिटेट्स ग्रोथ फॉर द employees for new projects, right? So it is a one important, point number 5 is better coordination. The elements of delegation, namely authority, responsibility and accountability, just a minute, huh friends. Point number 5 is basis of management hierarchy and point number 6 is better coordination, right. So point number 6 is better coordination and then after we are going to discuss point number 5 is basis of management hierarchy. In the slide arrangement there is a chronological mistake done, right. So I am accepting that chronologically it has been changed, but we are completing or we are covering all 6 importance of delegation. So let me discuss point number 5. We have discussed the point number 4 of facilitation of growth and now we are going to discuss about the basis of management hierarchy. Delegation of authority determines who has to report to whom, creates the chain of superior subordinate relationship which is the basis for hierarchy of management. देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो ये चीज डिसाइड करेगा कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा. इट मीन्स वहां पर सुपीरियर सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होती है. सो इट इज द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की. क्लियर? टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट, who is the superior and who is the subordinate, the relationship is determined over here. So it is the basis of management hierarchy. Point number 5. Now point number 6, better coordination. The elements of coordination, namely authority, responsibility and accountability, clearly defines the power, duties and the answerability attached to the various position in the organization. देखो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन जो है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वो क्लियरली प्रोवाइड करेगा, डिफाइन करेगा
कि किसके पावर्स में कौन सी चीज है, कौन किसकी क्या ड्यूटीज रहेगी, कौन आंसरेबल रहेगा, किसको आंसरेबल रहेगा, एक्सेट्रा। और इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में जो वेरियस पोजीशंस है वो डिफाइन की जाएगी। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज। अगर ये चीज होती है तो ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज जो है उनको अवॉइड किया जा सकता है। रिजल्टेंटली बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट गेट्स एस्टैब्लिश्ड। इसके कारण क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो बेटर कोऑर्डिनेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में वो क्रिएट किया जा सकता है, वो अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है और उसके कारण मैनेजमेंट फंक्शंस जो है वो अच्छे से एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। टोटल 6 इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस हम लोगों ने देखे हैं। अगर इसमें कहीं पर कोई भी डाउट्स है तो मैक मीटिंग में आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।